Hello everyone, welcome to my brave future doctors. Today's topic is diagrammatic sectional view of female reproductive system. This is the diagram which is given in NCERT page number 29 and figure is 2.3b. Now let's label this one by one. Okay. This is uterine fundus. Alright, and this is I'll number it one by one and then write it. Okay, this is isthmus and this is ampulla. Alright, and this is infundibulum, and next comes fimbriae, that is number 5. These are ovaries, number 6. And this is cervix, number 7, and this is cervical canal, this is number 8, and lastly this is vagina, that is number 9. Alright, now I'll just write down each one of them. First one is isthmus. Second one is ampulla. And next, third one is infundibulum. Alright, these three together make fallopian tube. Okay, and next comes fimbriae. And next is this is fourth, fifth, sixth. Okay, fourth is fimbriae, and then fifth one is ovary. Next comes sixth one is cervix. Seventh is cervical canal, and lastly eighth one is vagina. Alright, just go through this diagram and just revise what all these are. Now let's discuss in detail about this topic. I'll give handwritten notes. If you want it, you can go and join my Telegram channel. I'll keep sending my notes, photos of these notes on that, and as well as if you want to take screenshot during video, then just please pause and then take the screenshot. Okay, now let's begin with this. Okay. Female reproductive tract. Okay, female reproductive system, in which female accessory ducts are first one is oviduct. This is also called as fallopian tube. And next comes uterus, and lastly comes vagina. These three together form female accessory ducts. Okay, first let's go with the fallopian tube. Fallopian tube is made up, the total length of fallopian tube is 10 to 12 centimeter. Alright, and then it is made up of three parts, as I said earlier, that is ampulla, isthmus, ampulla, and infundibulum. Alright, now let's go सामने नज़दीक से दूर, that is with reference to ovaries. Okay, सबसे पास कौन सा आता है, that is infundibulum. Okay, for infundibulum सबसे पास आता है. Okay, infundibulum कैसा है, that is funnel shaped है, funnel shaped. And मैंने बोला ना, सामने नजदीक से दूर जाते विथ रेफरेंस टू क्या, ओवरीज. तो दिस इज क्लोजर टू ओवरीज. ओके, क्लोजर टू ओवरीज. ऑलराइट, एंड इसका स्पेशल फीचर जो PYQ में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. इसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको बोलते हैं फिम्ब्रे. लाइक
it helps in collection of ovum after ovulation. इसका main function है, इसका actual function क्या है? Collection of ovum after ovulation, fimbriae. Okay, it has fimbriae. Alright, these are finger-like projections. Projections, collection of ovum आफ्टर ओव्यूलेशन, इसका फंक्शन है. ऑलराइट, ये PYQ में पूछा गया है, जस्ट ये बात याद रखना. एंड नेक्स्ट कौन सा पार्ट आता है? इनफंडिबुलम के बाद आता है, दैट इज एम्पुला. ओके, एम्पुला इनफंडिबुलम के बाद आता है, सो इट इज मिडल पार्ट एंड इट इज अ बिट वाइडर. ओके, दिस इज मिडल पार्ट और सेकेंड पार्ट एंड इट इज वाइडर. ऑलराइट, एंड इसके बाद कौन सा आता है? इस्थमस इज द लास्ट पार्ट एंड दिस इज द फारदेस्ट फ्रॉम द ओवरीज एंड ये सबसे नजदीक यूटरस को है. ऑलराइट, दिस इज नैरोअर पार्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट. ओके, ठीक है. इस्थमस यूट्रस के सबसे करीब है और ओवरीज के सबसे ज्यादा दूर है. ऑलराइट, अभी नेक्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ते हैं? दैट इज इस्थमस के बाद कौन सा आता है जिसके साथ डायरेक्ट, इस्थमस इज डायरेक्ट ओपन्स इनटू यूट्रस ना. तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? यूट्रस पढ़ते हैं. यूट्रस को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम्ब. ऑलराइट, इसमें मदर कंसीव करती है, बेबी ग्रो होता है, इसको यूटरस बोलते हैं, उस प्लेस को यूटरस बोलते हैं. एंड दिस इज इन्वर्टेड प्योर शेप्ड. ओके, एंड यूटरस के बाद आता है वेजाइना. यूटरस ओपन होता है वेजाइना में. एंड ये कैसे ओपन होता है? यूटरस ओपन्स इनटू वेजाइना वेयर सर्विक्स के थ्रू यूटरस वेजाइना में ओपन होता है. ऑलराइट, चाहिए तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लेट्स कंटिन्यू. ओके, इतना हुआ. इसके बाद बर्थ कैनाल. इसमें क्या है? कैविटी. ये किससे बनता है? बर्थ कैनाल मतलब क्या क्या, बर्थ कैनाल में क्या क्या इंक्लूडेड है? कैविटी ऑफ यूटरस को क्या बोलते हैं? सॉरी, कैविटी ऑफ सर्विक्स को सर्वाइकल कैनाल. ऑलराइट, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिला के बर्थ कैनाल बनाते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रख के लो. एंड उसके बाद कोई क्या क्या दिया है? अभी देखो, यूटरस अभी कंसीव करता है ना, जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है. तो यूटरस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. ओके, यूटरस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. वो 3 लेयर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन है एंडोमेट्रियम एंड देन मायोमेट्रियम. सॉरी, हाँ, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम है. इन अंदर से बाहर बोल रही हूँ. तो पहले कौन सा आएगा? एंडोमेट्रियम. ये सबसे ज्यादा अंदर है. दिस इज इनर मोस्ट एंड ये दिस इज इनर ग्लैंडुलर लेयर. यही लेयर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शेड होता है. ऑलराइट, एंड दिस इज द लेयर विच अंडरगोस क्लिनिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस लाइक undergoes shedding process in every month or in every 28 days in females. Alright, and next कौन सा आता है? नेक्स्ट कौन सा लेयर है? बीच वाला मायोमेट्रियम. ये स्मूथ मसल से बना है. दिस इज द मिडल एंड ये स्मूथ मसल से बना है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. ये इम्पॉर्टेंट है.
Alright, ये स्मूथ मसल से बना है. दिस मायोमेट्रियम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी. ऑलराइट, इसको दिस मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स कॉन्ट्रैक्शंस, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी. एंड नेक्स्ट थर्ड लेयर कौन सा है? पेरीमेट्रियम. पेरीमेट्रियम क्या है? ये सबसे बाहर वाला लेयर है. इट इज आउटर मोस्ट लेयर है. एंड ये थिन मेम्ब्रेनस है. दिस इज थिन मेम्ब्रेनस. ओके, दिस इज थिन मेम्ब्रेनस. ओके, दिस इज इट फॉर द वीडियो. आपको चाहिए तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप तुम लोगों को ये रियली हेल्प कर रहा होगा. एंड इफ यू नीड notes, then just join my Telegram channel. Thank you.